welcome Kajol. ओके काजोल मैम, अच्छा सुनो सुनो, बैठ जाओ जल्दी से बैठ जाओ, बहुत सारी बातें करनी है. I do want to also take a minute to acknowledge the presence of a wonderful director, Umesh Bish sir. उमेश जी ने मेरी एक बहुत ही फेवरेट फिल्म बनाई है, शायद आप लोगों ने देखी होगी, पगलेट. आप में से यस जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एक और बार. शुक्रिया. Wow, the two of you are coming together to give us the season 2 of the trial. So I want to start by telling you, not asking you, कि भाई साहब क्या busy साल, touch wood, everything touch, because you've had an in-cinema release, which is Ma, where you were fabulous and fantastic. अगर आपने माँ देखी. Then you had a release which was a film on OTT, which was Sar Zameen. So congratulations on that too. Thank you. And here you are. This is your long format OTT series which has a season 2. So जाहिर सी बात है, we're already successful. This is great. तो season 2 वरना नहीं आता. So has this been one of your busiest years in the last couple of years? Let's start with that. Absolutely, and super proud of that. Super proud that this is my 34th year of working, and I'm patting myself on the back as well. I'm also patting myself on the back. Thank you. Super proud of the fact that my 33rd year has been probably busier than even my 15th or 16th year. Yeah. So yeah, happy about that. Hope it continues. And cross your fingers, it will. It will 100%. And also as fans हम बड़े खुश हैं because you know हमें इस साल 3 मौके मिले हैं काजोल जी के साथ इंटरफेस करने को. कुछ ज़्यादा ही हो गए, but it's okay. कुछ ज़्यादा ही हो गया. कुछ ज़्यादा ही हो गया. अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं बीच में. Please never say that, never. And उमेश जी के the trial के साथ जुड़ने से I'll tell you what I'm expecting as an audience. I am expecting the season to be touch wood even more glorious because उमेश जी, you know, let me say this. औरतों को ना बड़ा डर लगता है जब मर्द जो है हमारी कहानियाँ बोलने की जुर्रत करते हैं. लेकिन क्योंकि आपने इतने खूबसूरत तरीके से ये कहानियाँ बोली हैं इससे पहले, I want to first thank you for you know being part of this. कुछ कह सकता हूँ? Please sir. आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मर्द जो औरतों की कहानी सुनाते हैं वो औरतों से सीख के ही सुनाते हैं. क्या बात है, क्या बात है. इसीलिए तो I am so happy कि आप वो very few would acknowledge that. So बहुत बहुत शुक्रिया. And let me ask you Kajol that what does Umesh ji bring to a season that or a show that you've already been a part of? Because आप तो हैं ही, अब इनका जुड़ना नया है. बिल्कुल. और मैं ये कहूँगी कि उमेश जी is the kind of director who has, as you said, जैसे आपने कहा, उनको औरतों की कहानियाँ जो है बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं. तो आई थिंक सीज़न 2 में उन्होंने यही किया है नयनिका के साथ भी. उन्होंने एक एक्स्ट्रा लेयर दे दिया नयनिका को और उसकी कहानी को, जो शायद पहले था लेकिन उभर के आया है सीज़न 2 में. और and he is a very fine director. As an actor, I can say that you know I'm so proud to have worked with him. So thank you, Umesh ji. Thank you, Kajol. For you know giving me this chance to work with you. It was a pleasure. Thank you so much. Super happy about it. And he just has this fineness. जैसे एक director होता है जिसको आपको पता है कि एक नज़ाकत लाता है हर सीन में, हर पिक्चर में एक there's a touch that is very Umesh Bisht. Thank you. Yeah, I love it. I do want to ask you, before you directed Kajol, I'm sure you've seen Kajol. You've seen her work. What is fan, you can say fan. You're a fan? Yeah. Great. Absolutely. है ना? So how does a director approach an actor जिनका काम आपने कई सालों से देखा हो, and what is it that you hope to get, and then what did you actually get? Talk to us about you know directing Kajol. See, obviously I was so familiar with her work, and again, you know, it's like she's an actor who can do a very nuanced sort of acting. कभी कभी डायरेक्टर्स को ना परेशानी हो जाती है बताने में कि
किस तरह से ब्रीफ करें सीन को, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद इमोशनल सीन्स. अब कुछ इमोशंस जो होते हैं वो दे आर लाइक खुशबू की तरह होते हैं, तो उनको आप कैसे समझाओगे कि ये ऐसी वाली खुशबू है. तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है एक इंट्यूटिव एक्टर की. सो काजल हैज़ एवरीथिंग एंड मोर. सो मैं मजाक करता हूँ इनके साथ कि इनको सुपर नेचुरल पावर्स हैं. This is a rumor that he's starting that I have supernatural powers now. तो इनको पता अभी चल वो भी जाता है. काफी है. इनको पता चल जाता है कि आपके दिल में क्या है. तो एक मैं आपको वाकया बताता हूँ कि देयर वाज वन सीन यू नो इन विच इट वाज जस्ट अ वॉक एंड इट वाज अ इम्पॉर्टेंट वॉक. सो शी वाज डूइंग इट फाइन एंड शी वाज ऑब्वियसली लुकिंग गुड, बट आई वांटेड टू टेल हर जिस तरह आपका चाल ठीक है लेकिन जो आप सोच रही हैं चलते वक्त वो गलत है. Wow. सो दैट वाज एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन दैट टू हर. एंड सो मैं अपने without making me feel bad. Yeah. Basically वही प्रॉब्लम है. उमेश जी ये चाहते थे कि मेरे को बता दे लेकिन बुरा नहीं लगे मुझे. नहीं मतलब मुश्किल चीज़ थी बताना, समझाना ही मुश्किल चीज़ थी. सो आई गॉट अप फ्रॉम द मॉनिटर थिंकिंग कि अच्छा ऐसे बोलूँगा फिर ऐसे करूँगा. एंड वो 100 मीटर दूर से उन्होंने मुझे देखा और कहा एक और करते हैं ना. हाँ आई नो लेट्स टेक. एंड देन ऑन व्हेन वी रोल्ड शी डिड एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट टू टेल हर. तो इसको आप सुपर नेचुरल पावर ही तो बोलोगे ना. क्या है. वाह 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 वाह. तो काजल इज अ वेरी इंट्यूटिव एक्टर एंड शी इज अ वेरी स्पॉन्टेनियस एक्टर. I love it. I love it. I think the amazing thing is that with the trial, you have an entire new identity. Okay, there's an entire bunch who probably saw you, okay, for perhaps the first time. Because as an actor who stays relevant across decades, you always have a new audience. For them, you are Noyonika. Talk to me about when a character becomes, because we've seen lots of characters, whether it's Simran, okay, yeah? Simran to Noyonika. How do you not see the Kajol? You just make Kajol disappear, and that's amazing. Thank you for that compliment. I always think that the finest actors वही होते हैं जो जब आप उनकी पिक्चर देखो तो आपको वो दिखाई ही ना दे, आपको सिर्फ उनका किरदार दिखाई दे. तो वो मतलब मुझे लगता है कि सबसे बड़े एक्टर्स होते हैं. मुझे नहीं लगता है कि मैंने ये अचीव किया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, I always see Kajol in my performances. तुम्हारा पता नहीं है, but I always see her. But I think Noyonika is a character जैसे कहते हैं I just really like her. Yeah, I really like her. मुझे वो बहुत पसंद है. Like अगर Noyonika मेरी दोस्त होती तो I would love to be Noyonika's friend. She's that kind of a character, you know, and I had such a good time playing her. I think यही एक वजह है जो मुझे लगता है कि सीज़न 1 भी इतना ज़्यादा चला है, क्योंकि आई थिंक जो भी देखता है उनको लगता है कि नहीं नयोनिका सही है. वो शायद गलत काम कर रही है या शायद उसका बर्ताव कहीं पे ठीक ना हो, लेकिन फिर भी हम उसकी साइड पे हैं. बिकॉज शी इज़ ह्यूमन. शी इज़ नॉट, वो गलत नहीं है, सही है, लेकिन वो इंसान है. और एंड आई लव हर फॉर दैट. शी इज़ जस्ट ह्यूमन. शी इज़ नॉट ब्लैक, शी इज़ नॉट वाइट, शी इज़ नॉट ग्रे. शी इज़ ह्यूमन, you know. I can't wait to see what happens. Yeah, Talia, please, of course. For you who've straddled both worlds, you know, there's fiction and there's non-fiction. And I think very, very little is spoken about your non-fiction work. आपने documentaries में इतना काम किया है. There is a wonderful documentary on the Bhopal gas tragedy. अगर आपको कभी मौका मिले तो please देखिएगा. I have heard of that one, and I've heard so many good things about that one. I have not seen it, I have to say, but I have heard so many much good about it, things yes. about that one. Yes. Yeah. So my question to you is, but director तो एक ही है, you know. So how do you differentiate at all between, you know, doing fiction and non-fiction? And let's be honest, what is more exciting to you? And you're allowed to say non-fiction. Yeah. नहीं, एक्चुअली क्या है कि आई स्टार्टेड ऑफ एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर एंड आई वांटेड टू बी अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बिकॉज मुझे कुछ सीखना था पहले. तो आई थिंक जितने करीब से आप लाइफ को, ज़िंदगी को, किरदार को डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में देख सकते हैं और जितनी रियलिटी के साथ उनको पेश कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्री इज़, यू आर डॉक्यूमेंटरिंग द ट्रुथ, द मोमेंट, द इवेंट.
So that really helped me. So that gave me a lot of exposure. But उससे पहले actually I was very actively, मैं यहीं का हूँ, KM कॉलेज का हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के. तो वहाँ पे एक बहुत ही मशहूर द प्लेयर्स करके हमारा ग्रुप है. यो प्लेयर्स. वाओ. सो उसमें हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, केवल अरोड़ा, जानते होंगे आप उनको. सो उनके साथ मैंने बहुत नाटक किए थे, तो मैं बहुत थिएटर से पहले जुड़ गया था. उसके बाद हमने नुक्कड़ नाटक किए यहाँ पे. बहुत अच्छा एक हमारा थिएटर यूनियन करके ग्रुप था. तो एक्टिंग का शौक पहले से था. बट जब जामिया, मैं मेरी पूरी ज़िंदगी एक्चुअली दिल्ली में ही है. सो जामिया मास कम्युनिकेशन करने के बाद आई स्टार्टेड ऑफ एज अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर. सो दैट गेव मी लॉट ऑफ एक्सपोजर. बट नाउ व्हेन आई लुक बैक इवन एट माई डॉक्यूमेंट्रीज, आई फील दैट आई हैड अ सर्टन स्टाइल विच वॉज, यू नो, आई वॉन्टेड टू नरेट इट एज अ स्टोरी. तो उसमें मुझे नीरसता नहीं चाहिए थी डॉक्यूमेंट्री में. तो मैं उसको एक रस के साथ बताना चाहता था. तो मुझे लगा कि मेरा झुकाव शायद हमेशा से फिक्शन की तरफ ही था. क्या बात. तो एक पता नहीं क्या था कि बॉम्बे जाना नहीं चाहता था, दिल्ली में ही काम करना चाहता था. और ये बड़ा मतलब वो एक जवानी का पागलपन होता है कि मैं बम्बई नहीं जाऊंगा, बम्बई को यहाँ लेके आऊँगा. तो ये इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए. कमाल की बात कही है सर आपने. तो कुछ हद तक हो भी गया यार. मतलब काफ़ी लोग मैंने बॉम्बे से बुला लिए. और अगर अभी आप देखें तो मतलब बॉम्बे में जो काम कर रहे हैं वो बहुत दिल्ली वाले हैं. मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ, यू नो, वेरी टैलेंटेड एक्टर्स. और बॉम्बे आके बॉम्बे में रह जाते हैं. हाँ, बॉम्बे का क्या है ना, बॉम्बे बहुत मुश्किल से जगह देता है. लेकिन अगर आपको जगह देता है ना, तब जाने नहीं देता है. सो मैं बड़ा मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट, यू नो, I got this opportunity and I got a place in Bombay. And so Bombay मेरी कर्म भूमि है, इसमें कोई शक की बात नहीं है अभी. And so that was my journey. So I started off with the documentaries, learned a lot about life, about filmmaking, and then used all that experience and thing in doing the fiction work. Well, thank you so much for that. Kajol, I have to tell you this कि हम जब आपकी फिल्में देखते हैं तो there is a moment where you feel like only you could have done this. मतलब और कोई ये कर ही नहीं पाता. और मैं एकदम आज तो मैं मॉडरेटर नहीं, आज तो मैं फ़ैन हूँ, बिकॉज ऑनेस्टली आई रिप्रेजेंट ईच ऑफ अस. पर बहुत लोग एक्टर्स से पूछते हैं कि व्हाट्स योर प्रोसेस, और उसका कभी जवाब नहीं मिल पाता. लेकिन आज जितने भी wanna be actors in the audience, you know, wanna be, yeah, so many of you. जिन्होंने हाथ उठाया नहीं है उनके लिए भी बोल देती हूँ. Please. You know, acting is an amazing process and मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितने भी लोग हैं, I think थेरेपी के लिए लोगों को एक फिल्म तो ज़िंदगी में करनी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीरियसली बता रही हूँ आप सबको. या तो एक नाटक करो, या तो डू अ रोड साइड प्ले, और डू एनी फॉर्म ऑफ एक्टिंग दैट यू कैन, एंड प्लीज़ पुट योर चिल्ड्रन इन इट. अपने बच्चों को भी एक बार ज़रूर यू नो एक्टिंग का जो है एक क्लास करवाना या जो भी है, बिकॉज इट इज़ द बेस्ट थेरेपी दैट यू कैन एवर गिव योर सेल्फ और योर किड्स और एनीबडी. क्योंकि हम जब एक कैमरा और 100 लोगों के सामने हंसते हैं, रोते हैं, एंड लाइक आई वॉज टेलिंग समबडी कि मैंने तो शॉर्ट्स और हॉल्टर टॉप पहन के टैक्सी के ऊपर फोर्ट के चौराहे पे मुंबई के ट्रैफिक के बीच में टैक्सी के ऊपर खड़े होके गाना गाया है. हाँ बिल्कुल. तो आई थिंक इट इज़ अमेजिंगली फ्रीइंग. इट इज़ सो फ्रीइंग टू नो दैट आप जो भी कर रहे हो, हाँ फ़र्क पड़ता है लोगों को, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना आप सोच रहे हो. एंड व्हेन यू क्राई इन फ्रंट ऑफ पीपल, जब आप रोते हो लोगों के सामने और जब आप हंसते हो लोगों के सामने, कभी कभी लगता है ना हमारे खुद के फिल्टर्स होते हैं कि नहीं, यू नो, आई शुड नॉट लाफ सो लाउडली, यू नो, आई शुड नॉट क्राई, इट्स अ पब्लिक प्लेस, बिकॉज पीपल विल सी. बट लोग ये नहीं देखते कि आप रो रहे हो. लोग ये देख रहे हैं कि ओ माई गॉड, शी इज सो ब्रेव टू बी सो वल्नरेबल. सो आई थिंक वो एक सोचने का तरीका होता है जो हम जितना भी बोल दें वो फ़र्क नहीं पड़ता है. लेकिन जब आप महसूस करते हो, जब आपके साथ होता है, तो एक स्विच चेंज हो जाता है आपके दिमाग में. नोयोनिका, आई थिंक उनके किरदार में हम देखते हैं दैट शी नीड्स टू कीप गोइंग.
यू नो, क्योंकि यार 2 बच्चे हैं, यू नो, और अब घर की जिम्मेदारी हम पर है. काजोल में और नयोनिका में आई फील द फायर इज द सेम, द सर्कमस्टांसेस ऑफ कोर्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, बट वेयर डू यू आइडेंटिफाई विद हर? बिकॉज आई फील कि बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर नयोनिका जो कहती है और जो करती है, इट्स अ वेरी काजोल थिंग. लाइक शी बी लाइक, See, मैंने तो वही तो बोला था, मेरे को हर किरदार में काजोल दिखाई देता है. सिर्फ आप ही बोल रही थी कि काजोल नहीं दिखाई देती है. so what do you love about her? Like I said, I have lots of things to love about her. As far as the similarities, yes, मुझे लगता है कि नयोनिका में वो फायर है जिसके बारे में आप कहते हैं. I also think कि she has this amazing vulnerability. There is a vulnerability about her. There is a willingness about her to take a risk. You know, not a very big risk, but कोशिश तो जारी है कि मैं कर सकती हूँ ये. So I find that very I like that about her, and I like that about myself as well. Wonderful. Umesh ji, I have to ask you, what is it like to actually be on that set? And when you have a vision, आपका एक डायरेक्टर का एक विजन होता है कि ये लैंड करना है, राइट? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है जिनको वो विजन पहुंचना चाहिए? क्या वो एक्टर्स हैं, क्या वो आपके एडीज़ हैं, क्या वो आपके डीओपी हैं, क्या वो आपके बाकी की टीम है? आप कैसे देखते हैं इस प्रोसेस को? जी, आई थिंक डायरेक्टर का सबसे बड़ा काम होता है टू कम्युनिकेट. बिल्कुल. So a director should be a good communicator, and which means that what you are thinking, you should have the clarity to explain it to everyone in the unit. तो अक्सर हम लोग ये करते हैं, मतलब मैं ये करता हूँ कि मैं अपनी कहानी का नरेशन सिर्फ एक्टर्स के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने क्रू के लिए भी करता हूँ. और जब मैं कहानी सुनाता हूँ तो उस टाइम बताता हूँ कि ये मेरे दिमाग में ऐसी फिल्म चल रही है. So when we come on the set, then all of us are on the same page. Yes. And fortunately, when you get the opportunity to work with such senior and mature actors like Kajol, veteran, बुला लो. तो उसमें बड़ा मतलब then you have to be very responsible. So आपको और थोड़ा लालच भी होता है, because in the sense that now here you see the possibility that you can go beyond, you know, there is something which is written on the screen, which is, you know, on paper, but there is something which is beyond that, between the lines जिसको बोलते हैं. तो आप उस हद तक पहुंच सकते हैं इस लेवल के एक्टर्स के साथ. क्या बात. सो बहुत हमारे सेशंस होते हैं बिफोर वी कम ऑन द थिंग, जिसमें हम लोग बात करते हैं, कैरेक्टर डिस्कस करते हैं. तो जैसे काजल कह रही थी कि इट्स अ मल्टी, नयनका इज़ अ वेरी लेयर्ड सॉर्ट ऑफ अ कैरेक्टर. निदा फाजिल साहब का एक शेर है कि हर एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखिए. क्या बात है, क्या बात है. So this is, so in a good way, Noyanka is such a layered actress, you know, and character, sorry. And with Kajol, you have the possibility of exploring those layers, of those subtle emotions. And you don't have to talk much, you just have to, you know, brief her about the thing, and she intuitively gets it. You have to think it. Yeah. Now that we've established this, आप सोचिए और हो जाएगा. Correct. काजल, मुझे लगा कि we should play a fun game with you. I'm going to throw a couple of your titles to you, and you're going to tell us वो पहली memory इन फिल्मों को लेकर जो आपके मन में आ रही हैं इस वक्त, ठीक है? And we might go a little far back, okay? So are you ready? I don't remember anything. मुझे तो कोई कुछ याद नहीं है, तो मुझे मत पूछो प्लीज. मेरे को पिक्चर ही बहुत कम याद है. एक फिल्म थी जहाँ पर इनका गाना था कि दादाजी की छड़ी हूँ मैं, आगे पीछे खड़ी हूँ मैं. फिल्म का नाम था उधार की जिंदगी. बिल्कुल. क्या याद है आपको? I remember that I was about 18 years old when I did the film. Yeah, I was really young. I was 18. Or according to today's woke nation, I had suffered burnout at the tender age of 18. Oh my God. Yes, I had suffered burnout with that film, and I told my mother, and turned around and told my mother, I cannot do movies anymore. I cannot do films anymore. I cannot work in films. I cannot put glycerine. I cannot cry. I just can't do this anymore. So my mom was like, what happened? और ये पिक्चर थी उधार की ज़िंदगी, और मेरे डायरेक्टर थे उस वक्त जिन्होंने मुझे ये सुपर पावर दी, बाय द वे. जो क्योंकि उनको हिंदी ज़्यादा आती नहीं थी, उनको इंग्लिश भी बहुत कम आती थी, और उनका एक ट्रांसलेटर था बीच में. तो वो जब भी मुझसे बात करते थे, मुझे इंट्यूटिवली समझ में आना चाहिए था कि शॉट क्या है.
तो वहां से मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई है जो उमेश जी has Wow. been grateful for today. But that was one film that I have put my heart, my soul, my stomach, every part of my body into every shot of the film. And by the end of the film, it was a very heavy film. It was a really heavy film. It was a very emotional film. और you know हर scene में या तो मैं भाग रही हूँ या तो रो रही हूँ या तो गिर रही हूँ. हाँ बिल्कुल गिरी पड़ी पूरे पिक्चर में. एंड इट वाज यहाँ पर भी गिर पड़ी. यहाँ पे भी गिरी पड़ी फिर हर पिक्चर में. but it was really draining. And by the end of the film I was like, Mom, I can't do this. I cannot put so much of myself. There's not that much of myself. As actors, we also have to realize our boundaries, and we have to realize that our boundaries are there for a reason. We cannot give so much of ourselves that there is nothing left for us to have. And so I told her, I said, इसके बाद ना mom, if I have to work, I want to do those films जहाँ पे मेरे 3 सॉन्ग हैं और 4 गाने हैं. हाँ 3 सीन्स हैं और 4 गाने हैं. बस उतना ही है. मेरे को एक ग्लिसरीन का ड्रॉप नहीं डालना है मेरी आंखों में. I want to be that, हाय हेलो कैसे हैं वो करके बस निकलना है. एग्जिट स्टेज लेफ्ट. So yes, that is my memory of उधार की जिंदगी. Well, thank you for sharing. And who would have thought कि ये intuition चल रहा है हमारा, है ना? एक क्राउड फेवरेट तो पूछना ही पड़ेगा. K3G. K3G, okay. Oh, Mrs. Bradley. Oh my God, वो सीन कितना मीम हो रहा है. Mrs. Sprightly. Yes. Would you like some tea? जो आप खास रहे हो साइड पे. Would you like some water? गला खराब है, पानी दे दूं? नहीं नहीं वो कह रहे कि तुसी बड़े मजाकिया. गलत पिक्चर है. ओह सर गलत पिक्चर है, सॉरी. K3G, I loved the story. I remember I think Karan had narrated it to me, and उसने मुझे कुछ पौने घंटे की नरेशन दी थी बस. And I had said, yes, I want to do this. It's too good. I'm going to have so much fun. And yes, I think we'll have a great time and let's do it. And at that character, अगर लोग बोलते हैं कि आपने वाओ क्या परफॉर्मेंस दिया, मैं बोलना चाहती हूँ कि ये पूरा किरदार जो है ये करण जौहर के दिमाग से निकला है. हर शॉट के लिए, स्पेशली जहाँ पे मुझे पंजाबी बोलनी थी, हाँ वो आई वांट टू टेल यू, उसने मुझे पूरी तरह से सिखाई है. कैसे बोलना है, कैसे बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या करना है, सब कुछ. ही हैज showed me every shot himself. So I would say the credit of that film, of that character, even the Mrs. Sprightly, yeah, goes to Karan, definitely, 100%. I love this. ये segment मुझे बहुत पसंद है. और आखिरी ये एक थोड़ी सी अंडररेटेड फिल्म है मेरे हिसाब से. इसको जितना प्यार मिलना चाहिए आज शायद मिले आपकी तालियों से. My name is Khan. How fabulous were you in that film? I have to hear you talk about it. Ooh, My Name is Khan. So, My Name is Khan came at a time when things were very turbulent. और उस वक्त जो है वो पिक्चर आई थी जहाँ पे you know काफ़ी कुछ लोगों काफ़ी कुछ कहना था, including Karan. And I remember one thing about the film. I remember the film that I remember I remember the songs, गाने, क्या गाने हैं पिक्चर के. The songs were amazing. But I remember I remember when we were shooting in San Francisco actually, or this is one of my favorite scenes in the film, which I thought was amazing, where you know she stands on the top of a mountain जहाँ पे वो खड़ी है, and शाहरुख उसको लेके आया है वहाँ पे to show her the sunrise. Sir, I'll show you something about. मैं आपको कुछ सैन फ्रांसिस्को के बारे में दिखाना चाहता हूँ जो आपने पहले नहीं देखा हो. And it's the sunrise over the city. And she turns around and she says like, will you marry me? And I love that scene. I love that scene. It's just the nicest scene that we got to perform. It was, I think, it was the coolest scene of the film. And it was just it was such a woke scene. Yes. आज के ज़माने के लिए, you know, it was such a,
it was such a today's scene. So yeah, it's one of the films that's very, very close to my heart. Thank you so much. I think this was lovely.